Good morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nishata from Saraswati Group of Education. Children, up till now we have learned so many things from textbook, right? But today we are going to learn something new. Yes, आज हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में अभी तक नहीं है. Yes, today we are going to study tables. What we are going to study? Tables. Now you would be thinking कि what is tables? Tables क्या होता है? So that all things I'm going to explain you in today's lecture. What is table? How tables are formed? How do you use them in your routine life? And many more things. Okay, so let us start our session. So this is session 1 and the topic of the day is tables. Okay, now before starting tables, children, I would like to tell you that tables का meaning होता है multiplication. What it is meaning? It means multiplication. I know this is a new word for you, but you will get to it in the later on chapters. Okay. So tables means multiplication. multiplication. This is the spelling of multiplication. It's a big spelling, right? Now, what is multiplication? आपने बोला tables मतलब multiplication, but अब multiplication का meaning क्या हुआ? Multiplication means repeated addition. What does it mean? It means repeated addition. You have already learned addition. आप लोगों को addition already आ गया है. Almost you have learned up till adding till 20, right? Now, for मल्टीप्लीकेशन सेज रिपीटेड एडिशन. अब इसका मतलब होता है कि आप अगर कोई भी एक नंबर रिपीटेडली मतलब बार बार अगेन एंड अगेन, व्हेन यू एड अ नंबर अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड एज रिपीटेड एडिशन. वन मोर टाइम, व्हेन यू रिपीट अ नंबर, एड अ नंबर, सेम नंबर अगेन एंड अगेन, आप कोई एक नंबर बार बार एड करते हो. Suppose 1, I'm adding 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 and so on. Then what I am doing? मैं one number बार बार add कर रही हूँ. So that adding repeatedly is known as repeated addition. And repeated addition means multiplication. And multiplication means tables. सब एक दूसरे के साथ connected है. Okay. So this is the basic thing you should know what is table. इतना आपको अभी सीखने के लिए जरूरी है. इससे ज्यादा आपको multiplication chapter में भी आएगा, but that we will do later on. अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि tables का meaning होता है repeated addition. What does it mean? Repeated addition. एक नंबर आप बार बार ऐड करते हो, उसका मतलब होता है multiplication, or you can say tables also. Okay, now children, before moving on to table, I will like to give you some examples of table. Without example, you will not understand what is table. Okay, so for that children, you can see on the board, मैंने लिखा है यहाँ पे एक mango draw किया है. This is my style of drawing. One mango and one more mango. So how many mangoes? One mango plus one mango is equals to 2 mangoes, right? इतना तो आपको भी पता है. अब इसमें आपने क्या चीज देखी? यहाँ पे भी 1 ऐड किया, यहाँ पे भी 1 ऐड किया. दोनों बार मैंने एक ही नंबर ऐड किया, right? और जो आंसर मिला that was 2. So this is an example of multiplication or tables. क्यों? Because एक ही नंबर 2 बार ऐड हुआ. Similarly, next example, 1 mango plus 1 mango plus 1 mango is equals to 1 plus 1 2 plus 1 3. So what is the answer? 1, 2 and 3 mangoes. Am I right? It is very easy and very clear to you, right? So what thing you noticed over here? यहाँ पे भी आपने एक चीज नोटिस की कि वही 1 नंबर बार बार ऐड हो रहा है. यहाँ पे भी 1 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 1 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 1 ऐड हुआ. कहीं पे भी 1 के अलावा और कोई नंबर ऐड नहीं हुआ. So this is also multiplication. Okay. Now one more example. 1 mango plus 1 mango plus 1 mango plus 1 mango.
4 टाइम्स मैंने 1 को ऐड किया है। कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो क्या आंसर मिला? 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। सो व्हाट इज द आंसर? 4 मैंगोज, राइट। सो ये क्या आपने देखा, यहाँ पे भी 1 को मैंने 4 टाइम्स ऐड किया। कितने टाइम्स ऐड किया? 4 टाइम्स। सो 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम्स ऐड किया तो मुझे आंसर मिला 4। और वो क्या था? रिपीटेड एडिशन। ये क्या था? बार बार एक ही नंबर को मैंने रिपीट किया ऐड करने में। सो दिस इज नोन एज रिपीटेड एडिशन। एंड ऑन बेसिस ऑन दिस वी विल डू टेबल ऑफ 1। बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू विद सम मोर एग्जांपल्स। अब यहाँ पे आपने देखा 1 नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा था। नाउ सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ माई बोर्ड, यहाँ पे 2 मैंगोज है प्लस 2 मोर मैंगोज। तो कितने मैंगोज हुए? 2 and + 2 3 and 4। सो हाउ मेनी मैंगोज? 1 2 3 and 4 मैंगोज, राइट। तो ये एग्जाम्पल में आपने क्या नोटिस किया? यहाँ पे 2 है प्लस, यहाँ पे भी 2 है प्लस, दोनों जगह सेम नंबर है। तो ये रिपीटेड एडिशन हुआ, एक ही नंबर दूसरी बार भी ऐड हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड एडिशन। सिमिलरली अगेन यहाँ पे 2 मैंगोज प्लस 2 मोर मैंगोज प्लस 2 मोर मैंगोज। तो क्या हुआ? 2 + 2 4, 4 + 2 6। So what will be the answer? 6 mangoes. And what you noticed here? That 2 is added 3 times. 2 कितने times add हुआ? 3 times. तो क्या बोलेंगे हम? 2 × 3। I will explain you, but this is just a beginning जो मैं आपको बोलती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं? 2 × 3. The answer we got is 6. Okay. Now next is 2 + 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज। अब आप कितनी बार मैंगोज ऐड कर रहे हो? 2। 4 टाइम्स आप 2 ऐड कर रहे हो। तो व्हाट आंसर यू गेट? 8 मैंगोज। आप चेक कर सकते हो 8 मैंगोज है। यस। सो यहाँ पे क्या आपने देखा कि यहाँ पे भी 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है। एक ही नंबर एडिशन में रिपीट हो रहा है। 2 + 3 नहीं आ रहा, 2 + 5 + 2 + 1 ऐसे नहीं आ रहा। एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इन सारे एग्जाम्पल में आप देखोगे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ऐड करने के लिए। तो जब एक नंबर बार बार रिपीट होता है एडिशन के लिए, इट इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन। एंड रिपीटेड एडिशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, एंड मल्टीप्लीकेशन मीन्स फॉर्मिंग टेबल्स। ओके, सो दिस इज समथिंग बेसिक दैट आई एक्सप्लेन यू अबाउट टेबल्स। नाउ बेस्ड ऑन दिस मैं आपको 1 का टेबल और 2 का टेबल समझाऊंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज माय बोर्ड एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टेबल ऑफ 1 एंड टेबल ऑफ 2 इज फॉर्म्ड। नाउ चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग द टेबल मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको कोई एडिशन करना हो तो आप हर बार ऐसे ऐड करोगे तो ये कितनी लंबा हो जाएगा प्रोसेस। कि अगर आपको 2 मैंगोज ऐड करने हैं 50 तक, तो 2 + 2 + 2 + 2 से 50 तक करोगे? नहीं करोगे, बिकॉज बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। कितनी बार आप 2 + 2 + 2 करते जाओ, अगर मिस्टेक्स भी होने के चांसेस ज्यादा है। सो अगर इस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है या रिमूव करना है तो इसका इजी वे जो होता है वो होता है टेबल्स। क्या होता है उसका इजी वे? टेबल्स, फॉर्मिंग टेबल्स। ओके, सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ ग्रुप एंड ऑब्जेक्ट। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक होता है ग्रुप और एक होता है ऑब्जेक्ट। ग्रुप को हम G से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट को O से डिनोट करते हैं। और जब भी आप टेबल्स लिखते हो तो जैसे हम एडिशन के लिए प्लस यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये साइन यूज करते हैं क्रॉस, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। सॉरी, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है इसकी साइन का नाम? मल्टीप्लिकेशन। और इन दोनों का जो आंसर आता है
जो हम सम बोलते हैं यूजुअली, वो इसमें बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। दिस इज द जनरल टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये कॉमन वर्ड्स हैं जो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक होता है ग्रुप, एक होता है ऑब्जेक्ट, और उन दोनों का जो आंसर मिलता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, अब ये सारी चीजें जो है ये मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगी, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन चैप्टर में आएगा। अगर आपको अभी पढ़ाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, नाउ टेबल्स लर्न करने के लिए टेबल्स कैसे लिखते हैं, और टेबल्स 1 से लेकर कोई भी नंबर तक के आप लिख सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। 10, 15, 20, 30, जहां तक कि आप चाहो, 100 का भी आप लिख सकते हो। ओके, बट टेबल ऑफ 1 कैसे फॉर्म करते हैं टेबल को? तो जिसका टेबल है वो हमेशा आगे लिखते हैं, वो ग्रुप होता है। ठीक है, एवरी टाइम रिमेम्बर कि जो टेबल दिया गया है, जिसका टेबल लिखना है, उसको ग्रुप की जगह पे लिखने का। और मैंने बोला था ग्रुप मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। ठीक है, अब पहले तो है ना, टेबल्स होते हैं 1 से 10 तक। ओके, 1 1 जा, 1 2 जा, 1 3 जा, ऐसे 1 से 10 तक होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे लिखोगे। सबसे पहले 1 का टेबल 1 से मल्टीप्लाई करना है, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे याद रखना है ग्रुप में जो टेबल दिया गया है वही लिखना है। 1 का टेबल है तो आप ग्रुप में एवरी टाइम 1 ही लिखोगे। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 10। हम लोग 10 तक लिखेंगे, 10 से आगे भी होता है, बट वी आर लर्निंग अप टिल 10. This is the general thing that we are learning. Okay. So मैंने ये क्या लिखा? 1 जो ग्रुप था वो लिखा, बीच में मैंने मल्टीप्लीकेशन की साइन डाली हर एक जगह पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मुझे 1 से 10 तक अरेंज करना है। ओके, लाइन में अरेंज करना है। 1 2 3 4, 1 के बाद 5 6 7 ऐसे नहीं आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमेशा टेबल्स ऐसे लिखते हैं। सपोज आपको 5 का टेबल हो तो 5 के टेबल के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे ग्रुप में एवरी टाइम यू विल राइट 5, और ऑब्जेक्ट में 1 से 10 तक। हर एक टेबल में ऑब्जेक्ट में आपको 1 से लेकर 10 तक जाना है, कोई भी टेबल आपको हो, और ग्रुप में आपको जो टेबल दिया गया है वही आप ग्रुप में लिखोगे। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे मिलेगा हमको? सो फॉर दैट सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि इसका आंसर कैसे मिलता है। 1 1 जा 1, इसका आंसर आएगा 1। बट आप बोलोगे कैसे दीदी? तो इसके लिए सबसे पहले जो ग्रुप दिए गए हैं हमको वो ग्रुप्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे कितना ग्रुप दिया गया है? 1। तो मैं ग्रुप कैसे यहाँ पे ड्रॉ करूंगी? एक स्क्वायर करके। ओके, एक स्क्वायर करके मैं यहाँ पे ग्रुप ड्रॉ करती हूँ। ये क्या हुआ? 1 ग्रुप, 1 दिया गया है तो मैंने ये 1 ग्रुप ड्रॉ किया, इसको ग्रुप बोलेंगे हम। ठीक है, अब इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1। कितने? 1। तो ग्रुप के अंदर हमको ऑब्जेक्ट्स डालने हैं। क्या डालने हैं? ग्रुप के अंदर हमको ऑब्जेक्ट्स डालने हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल करती हूँ जो ऑब्जेक्ट है। ये 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 सर्कल किया। तो ये क्या हुआ? 1 ग्रुप और 1 ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हुआ? ये हमको ऐड करना है, इसके पास में कुछ नहीं है। तो इस ग्रुप के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दू, इज इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा? 1 आएगा, राइट? व्हाट विल बी द आंसर? 1, क्योंकि एडिंग 0 टू एनी नंबर यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या आंसर आया? 1। तो व्हाट आई विल राइट हियर?
1, right? Similarly 1 2 जा, अब 1 2 जा कैसे होगा? पहले 1 ग्रुप है तो मैं 1 ग्रुप ड्रॉ करूंगी, ओके ना। उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स डालने हैं, पहले 1 1 जा था तो 1 ऑब्जेक्ट डाला, तो अब मैं इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स डालूंगी। तो ये क्या हुआ? 2 हुआ, इसके पास कुछ नहीं है तो 2 + 0 विल गिव मी 2. सो व्हाट विल बी द आंसर? 2, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू 1 3 जा, ये नीचे होता जा रहा है, सो कंसिडर लाइक दिस 1 3 जा, तो अगेन 1 ग्रुप, उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स डालूंगी। वाई 3 ऑब्जेक्ट्स? बिकॉज यहाँ पे 3 दिया गया है, ग्रुप तो 1 ही है तो 1 ही ग्रुप में ड्रॉ करूंगी, ठीक है। अब 3 ऑब्जेक्ट्स है तो 3 लिखूंगी, उसके साथ कुछ और दिया गया है? नो, सो +0. सो व्हाट विल बी द आंसर? 3. सो हियर इट विल बी 3. नाउ 1 4 जा, नाउ यू टेल मी कितने ग्रुप्स होंगे? आप कितने ग्रुप देख रहे हो यहाँ पे? 1. सो व्हाट आई विल राइट? 1 ग्रुप. और उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स? 4. सो आई विल ड्रॉ 1 2 3 4. तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 4. 4 प्लस और कुछ दिया नहीं गया तो 0. इट विल बी 4. सो आई विल राइट हियर 4, राइट? सिमिलरली 1 5 जा, सो अगेन मैं 1 ग्रुप ही ड्रॉ करूंगी बिकॉज ग्रुप की जगह पे सिर्फ 1 है, और हर एक में कितने ऑब्जेक्ट्स डालूंगी मैं? 5. ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स डालूंगी? 5. 1 2 3 4 5. So what will be the answer? 5 plus nothing is there. 0 is equals to 5. So I will write here 5. Similarly 1 multiply by 6. So again 1 group draw करूंगी because एक ही group है, और कितने ऑब्जेक्ट्स? 6. So I will draw 6. 1 2 3 4 5 6. So what will be the answer? 6 plus 0 will give me 6. So I will write here 6. Now 7 के लिए मैं यहाँ पे रफ वर्क करती हूँ, ओके। 1 7 जा, so how many group? 1. तो मैं क्या करूंगी? Only 1 group लूंगी. And how many objects? 7. So 1 2 3 4 5 6 and 7. तो कितने ऑब्जेक्ट्स थे? 7. प्लस कुछ आएगा? नो. सो +0 is equals to 7. Okay. So what is the answer I got? 7. So I will write here 7. Now 1 8 जा, it means 1 group, and how many objects in that group? 8. तो मैं कितने ड्रॉ करूंगी? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, right? So what will be my answer? 8 plus 0. So what I will write? 8 plus 0 is equals to 8, right? So the answer will be 8. Now 1 multiply by 9. So what I will get? First of all 1 group, क्योंकि 1 है ग्रुप में, और ऑब्जेक्ट्स कितने अब ड्रॉ करूंगी उस ग्रुप में? 9. So I will draw 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So what is the object total? 9 plus 0 will give me 9. What it will give me? It will give me 9. And the last is 1 multiply by 10. It means 1 group और उसके अंदर 10 objects. So I will do it here. 1 group and उसके अंदर 10 objects. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So ये क्या हुआ? 10 objects हुए plus 0 is equals to 10. So what will be the answer? 1 0 10, right? So this is table of 1. ये क्या हुआ? Table of 1. 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5,
1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10. ओके, नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि दीदी ये क्या बोल रही है. तो टेबल को बोलने का एक तरीका होता है, देयर इज अ वे टू स्पीक द टेबल. वो आप कैसे बोलते हो? 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई बाय 1. आप ऐसे भी बोल सकते हो, बट टेबल्स को इजीली रिमेम्बर करने के लिए हम लोग बोलते हैं 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3. ओके, यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 टाइम 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 टाइम 2 इज इक्वल्स टू 2, 1 टाइम 3 इज इक्वल्स टू 3. ऐसे भी आप बोल सकते हो, या 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3. ऐसे भी आप बोल सकते हो. आई नो दिस इज टोटली अ डिफरेंट थिंग फॉर यू. ये समझने में और इसको अडेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा, बट बिकॉज ऑफ दैट ये चीज मैं अर्ली इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ताकि आप लोग ये सारे रोज प्रैक्टिस कर सको. और आपने एक चीज देखी 1 के टेबल में कि जब भी जो भी प्रोडक्ट आ रहा है 1 का, जो भी आंसर आ रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ऑर्डर में आ रहा है. डिड यू सी दैट? व्हाई? बिकॉज जब भी आप कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर में वही नंबर आंसर मिलेगा. जैसे मैं 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे आंसर 5 ही मिलेगा. 6 को कर रही हूँ तो 6. दिस इज अ रूल कि जो भी नंबर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो आपको वही नंबर मिलता है एज एन आंसर, और यू कैन से एज एन प्रोडक्ट. ओके, सो दिस वॉज टेबल ऑफ 1. और यही चीज मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी. जब मैंने 1 को 2 टाइम्स ऐड किया था, 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो, तो क्या मिला था? 2. तो ये वही चीज मैंने आपको बताई. 1 को 2 टाइम्स मैंने ऐड किया, तो ऐड की जगह यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन. तो क्या आंसर मिला? 2 को. अब 1 को मैंने 5 टाइम्स ऐड किया तो 5 मिला. 1 को 8 टाइम्स ऐड किया तो 8 मिला. 1 को 9 टाइम्स ऐड किया तो 9 मिला. सिमिलरली 1 को 10 टाइम्स ऐड किया तो 10 मिला. तो ये जो है ये ग्रुप है, वो हम लोग ऐसे ग्रुप बनाते हैं और उसके अंदर जो हमको ऑब्जेक्ट दिया गया है, जो हमको बार बार ऐड करना है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 मेरे को 1 को 2 टाइम्स ऐड करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रुप के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स डाल दिए. तो वो क्या हो गया? 2. उसके साथ कुछ और ऐड नहीं है तो क्या होगा? +0. क्या आंसर आया? 2. राइट? सो दिस इज द वे यू फॉर्म द टेबल ऑफ 1. नाउ चिल्ड्रन, I will erase table of 1 and I will show you how we will form table of 2. Children, now you can see on board that I have written table of 2 and I have drawn 2 boxes, right? Now how this is formed? So for table of 2, मैंने बोला था जिसका भी टेबल हो आप ग्रुप में क्या लिखोगे? जो नंबर का टेबल हो ग्रुप में आप वही लिखोगे. तो अभी हम लोग 2 का टेबल कर रहे हैं, तो ग्रुप की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे. देखा? और ऑब्जेक्ट में बोला था कोई भी टेबल हो तो ऑब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे? 1 से 10 तक. तो आप देख सकते हो 1 से 10 तक लिखा है. अब जो इसका आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट. राइट? नाउ अब आपको जैसे आप देख रहे हो कि 2 1 जा, ओके, 2 1 जा क्या होगा वो फॉर्म करना है. कैसे पता चलेगा? तो मैंने बोला था जितने ग्रुप्स हैं उतने बॉक्सेस या उतने स्क्वायर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ग्रुप्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस ड्रॉ किए थे. 1 के टेबल में कितने ग्रुप थे? सिर्फ 1, इसलिए हमने 1 के टेबल में सिर्फ 1 बॉक्स ड्रॉ किए थे. 2 के टेबल में 2 ग्रुप्स हैं, तो हम लोग 2 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे. तो मैंने पहले से ही 10 तक 2 बॉक्सेस ड्रॉ करके रखे हैं. ओके, अब आंसर कैसे मिलेगा? तो वो बॉक्सेस के अंदर जो हमको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं वो डालने हैं, और वो ऑब्जेक्ट को ऐड करके जो आंसर मिलेगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 1 जा, व्हाट इज द आंसर? आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट में 1 है,
तो हमने यहाँ पे 2 ग्रुप्स ड्रॉ किए हैं। अब दोनों ग्रुप में वी विल प्लेस वन ऑब्जेक्ट इसमें, वन ऑब्जेक्ट इसमें। क्यों 1 1? बिकॉज वन ऑब्जेक्ट दिया है और ग्रुप्स 2 दिए गए हैं, तो 2 ग्रुप्स ड्रॉ किए और दोनों में 1 1 ऑब्जेक्ट डाले। ओके, अब इनको ऐड करेंगे। ये क्या है? 1, इसमें 1 है, प्लस 1, इसमें भी 1 है, विल गिव यू 2। सो क्या आया आंसर? 2 1 जा 2, राइट। सिमिलरली 2 2 जा, तो अब 2 बॉक्सेस तो ग्रुप के ड्रॉ किए गए हैं, बट ऑब्जेक्ट्स कितने डाले हैं हर ग्रुप में? 2। तो हम लोग कितने डालेंगे? 1 2, और इस ग्रुप में भी डालेंगे 1 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4. So what is the answer? 4, right? Similarly 2 multiply by 3, तो कितने डालेंगे ऑब्जेक्ट्स दोनों ग्रुप में? 3. So 1 2 3, 1 2 3 is equals to 3 plus 3, 3 plus 3 is equals to 6. So what is the answer? 6. Okay. Now 2 multiply by 4. So कितने ऑब्जेक्ट्स? 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4. So what is the answer? 4 plus 4. Yes, you can count on your fingers. It is 8. So what is the answer we got? 2 4s are 8. Now 2 5s are. Okay. तो कितने ऑब्जेक्ट्स हर एक में डालेंगे? 5. तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 plus 5. Okay. 5 plus 5. It will give me 10. So what is the answer I will get? 10. Okay. Now 2 multiply by 6. So for that क्या करूंगी? हर एक में कितने ऑब्जेक्ट्स डालूंगी? 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. So 6 plus 6 will give me 12. So what will be the answer? 12. Now 2 multiply by 7. So हर एक बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट्स? 2 2 डालूंगी? No, 7, because 7 is the object. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 and 7 will give you 7 plus 7 is equals to 14. Okay, so the answer will be 14. Now 2 multiply by 8. So how many objects in each group? Each group मतलब हर एक ग्रुप में कितने objects? 8. So 1 2 3 4 5 6 7 8. In this also 1 2 3 4 5 6 7 8. And 8 plus 8. Start counting. 8 plus 8 will give you 16. So what will be the answer? 1 6 16. Now 2 multiply by 9. So how many objects in each group? There will be 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. And here also 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So answer is 9 plus 9 will give me 18. So the answer will be 18. Okay. Now 2 multiply by 10. It means कितने ऐड करने हैं? 10 10. दोनों बॉक्सेस में 10 10 ऐड करने. So I will add 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So what is the answer? It will be 10 plus 10 is equals to 20. So the answer will be 20. Okay. What will be the answer? 20. Why? Because 10 plus 10 is equals to 20. So children, did you see how I formed the table of 2? देखा आपने कि 2 का टेबल मैंने कैसे फॉर्म किया? 2 2 ग्रुप्स बनाए और जितने ऑब्जेक्ट्स थे वो
हर ग्रुप में डाले और फिर क्या किया, उनको मैंने ऐड किया। सो ऐड करने के बाद जो मुझे आंसर मिला वो मेरा प्रोडक्ट था। ओके, और आप लोग देख सकते हो एवरी टाइम मैंने जो ऐड किया, मैंने बोला था टेबल्स मतलब रिपीटेड एडिशन, ठीक है, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है तो ही टेबल्स बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 + 1 2, 2 + 2 4, हर जगह पे सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 1 रिपीट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 + 5, यहाँ पे 7 + 7, यहाँ पे 9 + 9, राइट। सो यू कैन सी दैट सेम नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। और जब सेम नंबर रिपीट होता है उसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, और मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग होता है टेबल्स। ओके, सो चिल्ड्रन आज हमने पढ़े टेबल ऑफ 1 एंड टेबल ऑफ 2। ओके, अब आपको रोज इसकी घर पे प्रैक्टिस करनी है, बट कैसे करोगे आप, ये एक बार सिर्फ लिखोगे, मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भेजूंगी, बाकी आपको ऐसे फॉर्म में टेबल्स की प्रैक्टिस घर पे करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली एटलीस्ट 3 टाइम्स। 3 टाइम्स रफ बुक में आपको टेबल्स लिखने हैं, या फिर आपको 2 बुक लेने को कही है, 1 बुक इज फॉर टेबल्स, रफ बुक मत लिखो, यू राइट द टेबल्स इन द टेबल बुक। ओके, सो टुडे आई विल गिव यू होमवर्क एज राइट टेबल of 1 and 2 in CW। कौन सी बुक में आप लिखोगे, इन CW। आज आप 1 टाइम लिखोगे, बाकी डेली आपको अपनी जो टेबल्स के लिए दूसरी बुक बनाई है उसमें डेली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स 1 और 2 के टेबल की प्रैक्टिस करनी है। और जैसे ही आपको रिटर्न प्रैक्टिस हो जाए आपको ओरली याद रखने हैं, क्योंकि टेबल्स आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। सो यू हैव टू रिमेम्बर टेबल्स रेगुलरली। ओके चिल्ड्रन, so with this we come to an end of our session, and I hope you enjoyed the session, and we will be meeting back soon. Bye bye.